Okay, dear, you know about the exponents and powers, and here is a identity for you. That is a raised to the power of m and whole raised to the power of n equal to a raised to the power of m into n. This identity we will use here. Okay. First of all, you factorize this 64 and you can observe that exponents is 1 by 2. Okay, 1 by 2, 2, you observe only this 2. It means you factorize the 64 only 2 times. So you can write it as 8 into 8 and whole raised to the power of 1 by 2. And 8 into 8 is written as 8 raised to the power of 2. And this is 1 by 2. And now using this identity, you will write it as 8 raised to the power of 2 into 1 by 2. Can you say what is the result? 2 and 1 by 2 is cancelled out. 8. So you will get only 8 raised to the power of 1. And 1 is meaningless, so the answer is 1. So finally you can write that answer of this question is 8. Okay. तो आपने देखा होगा कि यहाँ इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, कितना हार्ड है, कितना इजी है. चलिए मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन 32. And this 32 you observe here exponents is 1 by 5 means you 32 factorize in 5 times. A prime number you will take that it will be 5 times. It should be 5 times. Okay. So this is written as 32 as 2 into 2. 2 2 ja 4, 4 2 ja 8, 8 2 ja 16, 16 2 ja 32 and whole raised to the power of 1 by 5. How many 2? 1, 2, 3, 4, 5. So you can write 5 raised to the power of 5 and whole raised to the power of 1 by 5. And now use this identity. This is a raised to the power of m into n, that is 2 raised to the power of 1 by 5. Okay, 1 by 5 after before 5 into 1 by 5. Now what you will get? 5 and 1 by 5. 5 is whole number. 5 is cancelled from this to the denominator. So you will get 2 raised to the power of 1 only. That is only 2. So this is the answer of this question. And the same way, you will write the factor of 125 only 3 times. That is 5 into 5. 5 5s are 25 5s are yes. And it is you can write as multiple people want to join this call. Aditya Singh एंड अच्छा यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जी शूट से नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं ये लोग ईमेल से आ रहे हैं, इसलिए यहाँ इनको परमिशन मांगनी पड़ रही है. क्या प्रॉब्लम है पता नहीं है. आदित्य सिंह हैं और नाजिया बानो भी हैं. आदित्य सिंह नाजिया बानो, चलो परमिशन दे दी जाती है. आदित्य सिंह और नाजिया बानो प्लीज आप लोग जी शूट अकाउंट से ही आया करिए, क्योंकि आपको परमिशन आगे नहीं मिलेगी अगर आप दूसरे अकाउंट दे दी है कि चलिए शायद कोई प्रॉब्लम रही होगी इसलिए आप जीमेल से आ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आदित्य सिंह ने पता नहीं क्या मैसेज दिया था, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि आप जी शूट से आइएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ऑटोमेटिकली मीटिंग में ज्वाइन हो जाएंगे. ठीक है. तो यस डियर, तो यहाँ पे हमने ये लिखा 5 is how many times? 3 times. So you can write this is 5 raised to the power of 3 and whole raised to the power of 1 by 3. Now using again this identity you will get 5 raised to the power of 3 into 1 by 3. So 3 and 3 cancelled out, you will get 5 raised to the power of 1 is meaningless. So the answer of this question is 5. तो आपने यहाँ पे देख लिया होगा कितना आसान सा ये क्वेश्चन था. अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. तो इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे.
और यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा? नो मच डिफरेंस हियर, सेम आइडेंटिटी विल बी यूज्ड हियर. एंड नाउ लेट अस one question for part number 2. Question number 2, and let us part now any one part, and it is I think that let us part number third. Part number third is this, is 16 raised to the power of 3 by 4. What to do? Again you will observe only denominators. So how many, what is the number into the denominator? 4. So you will factorize this 16 in 4 times. That is, you will get 2 to ja, 4 to ja, 8 to ja, 16 whole raised to the power of 3 by 4. ओके, ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट होगा उतना ही. तो देखो ये 4 टर्म्स आ गए, means 2 raised to the power of 4 and whole raised to the power of 3 by 2. And again you will use this identity. So you will get 2 raised to the power of 4 into 3 by 2. Okay. Now this 3 by, not 3 by 2, this is 3 by 4, sorry. 3 by 4 and 3 by 4. So 4 and 4 cancel out. And now you will get 2 raised to the power of 3. तो जो पिछले क्वेश्चन में 1 मिलता था वो 1 नहीं मिला, इस बार 3 मिला. And 2 raised to the power of 3 means this is 8. So the answer of this question is 8. Why? Because 2 raised to the power of 3 is written as 2 into 2 into 2. And 2 into 2 into 2 means this is 8. So this is the answer. In the same way you can solve question number, part number first, part number second, and part number fourth also. But in the part number 4 there is a negative exponent, so don't worry, you will use another identity, that is a raised to the power of minus m equal to 1 upon a raised to the power of m. तो 1 अपॉन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. आप करके देखिएगा, बहुत आसानी से आप कर पाएंगे. सो नाउ डियर मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे यहाँ पे आपको दो दो एक्सपोनेंट्स दिए गए होंगे, दो दो नंबर दिए गए होंगे, और वो भी सेम करके दिए गए होंगे. तो देखो सेम एक्सपोनेंट्स नहीं होगा लेकिन सेम बेस होगा. तो सेम बेस वाला एक आइडेंटिटी आपने पढ़ रखा है, मालूम है आपको? याद करो वो दिन जब आप क्लास 6 में पढ़ते थे, सॉरी क्लास 7 और 8 में पढ़ते थे. तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा था, ए रेज टू दी पावर ऑफ एम इंटू ए रेज टू दी पावर ऑफ एन इक्वल टू ए रेज टू दी पावर ऑफ एम प्लस एन. वहां पे एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं? प्लस. तो प्लस अगर होते हैं तो लेट अस हियर पार्ट नंबर 1 of the question number 3. It is given that 2 raised to the power of 2 by 3 into 2 raised to the power of 1 by 5. इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है. So dear, no problem. We will use this identity and can write it is 2 raised to the power of 2 by 3 plus 1 by 5. Now the LCM of 3 and 5 is 15. Yes, correct. And 3 5s are 15 and 5 multiplied 2 and 5 2s are 10 plus 5 3s are 15 and 3 multiplied to 1, that is 3. So what you will get? 10 plus 3 means 13 by 15. So nothing more. This is your answer, that is 2 whole raised to the power of 13 by 15. This is answer. But keep in mind that exponents you will write just top of the given base. बेस के टॉप पे लिखना है, सामने नहीं लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. ठीक है? ओके डियर, नाउ मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट आप कोई भी पार्ट ले लो. लीजिए इस बार डिवीजन वाला पार्ट ले लेते हैं. तो डिवीजन वाला पार्ट क्या है? 11 रेस्ट. सेकेंड पार्ट बताते हैं. सेकेंड पार्ट देखिए, पार्ट नंबर सेकेंड.
and part number second is 1/3 raised to the power of 3 and whole raised to the power of 1/7. Sorry, only 7. So first of all you operate the ब्रैकेट को पहले ऑपरेट करिएगा तो 1 पे पावर आएगी 7. It is 1 raised to the power of 7 and divide by 3 raised to the power of 3 and whole raised to the power of 7. So dear, this is 1 पे कितना भी पावर हो 1 ही रहेगा. ये 7 3 जा 21, 3 raised to the power of 21 हो गया. Okay, when you will get just like that 21, then what to do? अब आपको कुछ और करना नहीं है, इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा. दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, बाकी के पार्ट भी आप कर सकते हो. थर्ड पार्ट की अगर बात करें, 11 whole raised to the power of 1/2 and divide by 11 whole raised to the power of 1/4. So dear, you know an identity that a raised to the power of m divided by a raised to the power of m equal to a raised to the power of m minus n. इस आइडेंटिटी को यूज करना है. तो ये आपका हो जाएगा 11 whole raised to the power of 1/2 minus 1/4. ये ऊपर जाएगा, माइनस का हो गया. Now LCM of this one 11 and LCM is 4. So 2 2 ja 4. 2 is comes into the denominator, 4 1 ja, and 1 into 1 means this is. So dear, you will get 11, 2 minus 1 means 1/4. So dear, this is the answer of this question. तो आप यहाँ पे देख लिया होगा कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपने अभी सॉल्व किए कितने आसान है. तो ये तो एक्सरसाइज ही फिनिश हो गई. इतना आसान थी कि स्टार्ट करते ही खत्म भी हो गई. तो अब बताइए, आप ये सारे क्वेश्चंस आपने अभी पढ़े, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थे जिन्हें आपने पढ़ा लिखा और आप आगे बढ़े, आपने समझ पाया. तो चलिए अब इस एक्सरसाइज में और क्या है. इस एक्सरसाइज में अब हम आपको एक क्वेश्चन और बताएंगे जो आपकी एनसीईआरटी बुक में तो नहीं है, लेकिन आपको रेफरेंस बुक में जरूर मिलेगा और ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है. तो क्वेश्चन क्या है, चलो लिख लेते हैं. कोई भी क्वेश्चन हम इस तरह का लिखेंगे, ऐसा क्वेश्चन एक 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है. सो व्हाट इज द क्वेश्चन. So dear, question is such that if A and B are rational numbers, if A and B are rational numbers, ठीक है, and this is the relation 3 plus under root 8 divided by 3 minus under root 8 equal to A plus B अंडर रूट 8. तो इस तरह का कोई क्वेश्चन हो सकता है. यहां पे लिख सकता है 2 प्लस अंडर रूट 5, 2 माइनस अंडर रूट 5 इक्वल टू A प्लस B अंडर रूट 5. तो आपको करना क्या है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B. A और B का वैल्यू फाइंड करना है. तो आप इसमें करेंगे क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो कैसे करना है आप देख लीजिए, इसे करना कैसे है. आपको यहां पे क्या करना है, इसी क्वेश्चन को दोबारा से लिखना है. 3 प्लस अंडर रूट 8 डिवाइड बाई 3 माइनस अंडर रूट 8 इक्वल टू A प्लस B अंडर रूट 8. एनी डिफरेंस, नो डिफरेंस, सेम टू सेम आपने लिख लिया है ऐसे. अब आप क्या करेंगे, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे इसके अपोजिट साइन का, मींस रेशनलाइजेशन करना है. तो ये आपका क्या हो जाएगा,
ये आपका हो जाएगा, आप इसके अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कहलाता है आपका रेशनलाइजेशन। तो इसका अपोजिट साइन क्या है, 3 माइनस की जगह प्लस, तो 3 प्लस अंडर रूट 8, और यहां भी 3 प्लस अंडर रूट 8। ठीक है, राइट हैंड कुछ करना नहीं है, सेम टू सेम चलेगा जब तक आंसर नहीं हो जाता है। अब आप देखो लेफ्ट हैंड में दिस इज द सेम थिंग्स, मींस ये तो हो जाएगा होल स्क्वायर, बिकॉज दिस इज सेम थिंग्स। और यहां पे क्या है, आइडेंटिटी यूज होगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 होल स्क्वायर, और ये सेम ही रहेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना, लास्ट तक ऐसे ही चलेगा। अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 8 प्लस 2ab, 2 इंटू ए मीन्स एंड बी मीन्स अंडर रूट 8 एंड डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर जानते हैं 9, और अंडर रूट 8 का स्क्वायर जानते हैं 8, और राइट हैंड अगेन सेम टू सेम। अब आप देखो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, अंडर रूट 8 का स्क्वायर करोगे तो 8, और ये आपका रहेगा 2 3 जा 6 अंडर रूट 8 एंड डिवाइड बाई 9 माइनस 8 मीन्स 1 इक्वल टू, फिर से आपको सेम ही लिखना है बी अंडर रूट 8। ठीक है, ओके। अब आप देखो 8 एंड 9 क्या हो जाएगा 17 ही नहीं होगा, बताओ 8 एंड 9 होगा 17, तो यहां पे आप लिखोगे 17 प्लस यहां पे 6 अंडर रूट 8 इक्वल टू ए प्लस बी अंडर रूट 8। नाउ यू कैन ऑब्जर्व दिस इज द सेम थिंग्स, तो आप क्या करेंगे, ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग भी लिख सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, वी गेट, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 17, और यहां अंडर रूट 8 सेम थिंग्स है, कैंसिल कर दो ऐसे ही, और बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, और ये आपका हो जाएगा आंसर। So this is the most important question you will get in the examination of March 5। 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी 4 नंबर में पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसे आपने अभी अभी पढ़ लिया। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप कर पाएंगे कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन ऐसे ही रहता है, बस यहाँ पे कैलकुलेशन बदल जाएगी अगर कोई भी पार्ट यहाँ पे अलग टाइप का होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1।